حفیظ ہوشیارپوری نے لکھا ہے، ہر قدم پر ہم سمجھتے تھے کہ منزل آ گئی، ہر قدم پر ایک نئی درپیش مشکل آ گئی، یا خلا پر حکمراں یا خاک کے اندر نہاں، زندگی ڈٹ کر عناصر کے مقابل آ گئی، بڑھ رہا ہے دم بدم صبح حقیقت کا یقین، ایک مشکل کم ہوئی اور ایک مشکل آ گئی، حال دل ہے کوئی خواب آور فسانہ تو نہیں، نیند ابھی سے تم کو اے یاران محفل آ گئی۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، وہ ماں کا جوان سال بیٹا تھا، باپ نے پڑھایا لکھایا، اپنی کمائی اس کے مستقبل کی بہتری کے لیے پھونک دی، انجینئر بنا تو نوکری کے لیے در در بھٹکنے لگا، باپ نے شادی کروا ڈالی اور لگا کہ بہو آئے گی تو شاید بیٹے کی قسمت تبدیل ہو جائے گی، لیکن قسمت حکومت کی ترجیحات سے منسوب تھی۔ قسمت کی دیوی اب بدحالی کی چڑیل بن چکی تھی، جو زندگی میں چاروں طرف رقص کر کے زندگی میں کھلی آنکھوں ڈراؤنے خواب دکھا رہی تھی۔ ایسی صورت میں باپ نے بیٹی کی شادی روک ڈالی، اپنے گھر کو جس کو بنانے میں اسے 35 سال لگے اسے گروی رکھوا ڈالا، ایک سہانے خواب بیچنے والے کا پتہ لگوایا اور اس کے ہاتھ 25 لاکھ رکھے اور کہا کہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ بھیج جہاں سے یہ کمائی کے پیسے بھیجے تو اس سے اچھا گھر بنے، اس کے بچے اس سے اچھا پڑھ سکیں، اس کی بیوی اب سے اچھا کھا سکے اور اس کی بہن کو کوئی موزوں رشتہ مل سکے۔ خواب بیچنے والے بیوپاری نے آنکھوں میں مزید رنگ بھر دیے۔ اس کے بعد باپ نے گلے لگایا، تھپکی دی، ماں نے اس کا ماتھا چوما اور اس نے اپنے کمسن بیٹے کو گود میں اٹھا کے اس کے گال پہ بوسہ لیا اور اپنی اہلیہ کی جانب کھوکھلی نگاہوں سے دیکھا اور چل دیا۔ کچھ دن رابطے بحال رہے، بتایا جاتا رہا کہ میں کہاں موجود ہوں، کتنے میل پیدل چلا ہوں اور پاؤں پہ چھالے پڑ چکے ہیں اور لگانے کو کوئی دوا تک بھی میسر نہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا واپس آ جا، میرا دل گھبراتا ہے۔ اس کا اپنا بیٹا توتلی زبان میں بابا کو پکارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا اپنا باپ ہمت بندھاتا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ پھر اس نے آخری بار رابطے پر بتایا کہ اب سمندری سفر ہے، 3 دن رابطہ نہ ہو پائے گا اور چوتھے دن اس جگہ سے فون کالز کروں گا جہاں پہنچنے کے لیے سب نے اپنے کچھ نہ کچھ خواب قربان کر رکھے ہیں۔ رابطہ منقطع ہوا، 3 دن خاموشی چھائی رہی، خاموشی، پریشانی، حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت ایسی چھائی رہی کہ کوئی کال نہ آئی، اور چوتھے دن ایک خبر آئی کہ یونان جانے والی ایک کشتی کو حادثہ پیش آیا اور سہانے خواب دیکھنے والوں نے اپنے پیچھے زندہ لوگوں کو اپنی موت سے ڈراؤنی تعبیر دکھا دی۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کون بچا؟ کون مرا؟ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ خواب بیچنے والے بیوپاری خبر دینے کے بھی پیسے مانگنے لگے۔ یہ کہانی کسی ایک نواز، شہباز، سنی، نجم، ثاقب اور نور کی نہیں ہے، بلکہ یہ 750 کے قریب ان لوگوں کی ہے جو کسی ایک ملک، مذہب اور رنگ سے نہیں ہے، بلکہ مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والوں کی ہے، لیکن حالات سب کے ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ میرا بھتیجا شہباز محمد سعودی عرب میں حجام کا کام کرتا تھا اور وہاں پہ اچھے خاصے پیسے کما لیتا تھا، مگر پھر اس نے یورپ جانے کا منصوبہ بنایا اور سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہی معاملات طے کر لیے۔ وہ آزاد کشمیر میں کیل سیکٹر کے ایک گاؤں کا رہائشی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یونان کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والوں میں ان کا اپنا بھتیجا شہباز محمود اور 3 پڑوسی چودھری آزاد، چودھری ناصر اور نبیل بٹ بھی شامل ہیں۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ شہباز کو اس کے والد نے منع کیا، والد ہی نہیں بلکہ سب جاننے والوں نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہ کرو، مگر وہ لگ بھگ 2 ماہ پہلے سعودی عرب سے واپس پاکستان آیا، گھر میں صرف 5 دن رہا اور پھر یورپ کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شہباز کے 2 بچے ہیں اور وہ اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا۔ وہ اس کشتی پر سوار تھا جسے یونان کے قریب حادثہ پیش آیا اور کشتی پر روانہ ہونے سے قبل اپنے گھر والوں کو آگاہ کیا۔ 14 جون کو جنوبی یونان کے ساحل پر ماہی گیری کے لیے استعمال ہونے والی کشتی ڈوبی، جسے یورپ میں تارکین وطن کو پیش آنے والے بدترین واقعات میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ کشتی ڈوبنے کے اس واقعے میں اب تک کم از کم 78 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 104 افراد کو بچایا جا چکا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے کہا کہ اس واقعے میں خواتین اور بچوں سمیت لگ بھگ 500 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں کے مطابق جس جگہ کشتی ڈوبی وہاں سمندر انتہائی گہرا ہے
बचाए जाने वाले 104 अफराद में 12 पाकिस्तानी शहरी हैं, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कोटली से। इस कश्ती पर 750 से ज़्यादा अफराद सवार थे, जिनमें से 100 के लगभग बच्चे भी हो सकते हैं। ये ऐसा तहलका खेज इंकशाफ है जिसके बाद सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूनान ने इसे तारीख के बड़े कश्ती हादसों में से एक करार देते हुए 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। यूनान में पाकिस्तान के सिफारत खाने ने कहा कि वो इस मामले पर यूनानी हुकाम के साथ राबिते में है और उन्होंने ऐसे तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश की कि अगर उनका कोई रिश्तेदार या जानने वाला इस कश्ती पर सवार था तो उससे मुतल्लिक शनाख्ती तफसीलात एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाने को फराहम की जाए। यूनान में कश्ती हादसे में पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कोटली के केल सेक्टर के इलाके के मुतअद्दिद नौजवान सवार होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। मकामी लोग इस बारे में मुतफर्रिक आदाद शुमार बताते हैं। जाने वालों को जाने का रूट क्या बताया गया था? उनका मंसूबा यह था कि वो पहले पाकिस्तान से लीबिया पहुंचेंगे, जिसके बाद उनकी मंजिल इटली थी। वो काफ़ी अरसे से घर से निकले हुए थे और गाहे बगाहे अपनी खैरियत से आगाह करते रहते थे। अहले खाना बताते हैं कि चंद दिन कबल हमें इतला मिली कि उनको लीबिया में मसाइल का सामना और फिलहाल वो लीबिया में ही फंसे हुए हैं। उसके बाद पता चला कि कश्ती में बैठकर अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए, लेकिन कुछ अभी भी लीबिया में हैं और उन्हें कश्ती में सवार अफराद की तादाद का अंदाज़ा नहीं। लीबिया में मौजूद लोग कहते हैं कि उन्होंने गांव के लोगों से बात की है और उनको जो तफसीलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक केल सेक्टर के एक गांव से काफ़ी तादाद में अफराद यूरोप जाने के लिए निकले थे और कोटली ही के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मकसूद नगरियाल ने बहुत सी जगहों पर ये बात करते हुए बताया। BBC के अंदर कॉलम भी लिखा हुआ है कि उन्हें खदशा है कि इस कश्ती पर उनके करीब 5 रिश्तेदार के अलावा 2 दर्जन के लगभग अफराद भी सवार हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग ये बताते हैं कि जाने वालों के अहले खाना ने अपने बच्चों को यूरोप भेजने के लिए कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी, ज़मीन, घर का जेवर तक फरोख्त किया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे लोगों से भी राबिते में हैं जिन्होंने ये सब करने के लिए कर्ज लिया था। केल से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का कहना है कि उसके एक पड़ोसी की कहानी काफ़ी दिल दुखा देने वाली। उनके मुताबिक उनका पड़ोसी नासिर था जो अपने इलाके में वेल्डिंग का काम करता था। फिर इलाके के चंद नौजवान कुछ अर्सा कबल यूरोप पहुंचने में कामयाब हुए तो वो भी उनसे मुतासिर हो गए और उधार पकड़ के एक एजेंट को पैसे दे दिए। वो कोई 2 माह पहले यूरोप जाने के लिए निकला था और उसके घर से निकलने के चंद हफ्तों बाद ही उसके 5 साला बेटे की वफात हो गई। सारे इलाके में तो मशहूर है कि दोनों बाप बेटा एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो काम के दौरान भी अपने वालिद के साथ दुकान पे ही होता था और इलाके में मशहूर हो गया था कि बेटा बाप की जुदाई बर्दाश्त न कर सका। वो बताता है कि जब बेटे की वफात हुई तो उस वक्त नासिर जो था वो लीबिया में था और वो चाहता था कि वतन वापस आ जाए, मगर उसका पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात एजेंट के पास थे। नासिर को उसके बेटे की नमाज जनाजा लाइव कॉल के ज़रिए दिखाई गई। इस मौके पर वो रोता रहा, कहता रहा कि जिस बेटे के लिए इतनी मुश्किलात सह रहा हूँ, अब वही नहीं रहा तो मैं यूरोप जाके क्या करूँ। उन्होंने दावा किया कि नासिर की यूरोप जाने वाली कश्ती में सवार होने से 2 दिन पहले अपने रिश्तेदारों से बात हुई, मगर अब वो लापता है। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने 12 पाकिस्तानियों के रेस्क्यू किए जाने की तस्दीक की है। एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाना ये कहता है कि उनकी एक टीम ने पेलोस शहर के जनूब में डूबने वाली कश्ती के बारे में मुतल्लिका यूनानी हुकाम से राबिता किया और सिफारत खाने के मुताबिक एक टीम ने वहाँ का दौरा करके इब्तदाई मालूमात हासिल की। सिफारत खाने ने काला माठा शहर में बचाए जाने वाले 12 पाकिस्तानी बाशिंदों से मुलाकात की। सिफारत खाने के मुताबिक जिन अफराद को बचाया गया उनमें 2 का ताल्लुक पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली से है, जिनमें मोहम्मद अदनान बशीर और हसीबुर रहमान शामिल हैं। 3 पाकिस्तानी नयाद शहरी जो हैं यूनान के साहिल पे, उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि इस हादसे की खबर सुन के वहाँ पहुँचे थे और उनका दावा था कि उनके रिश्तेदार भी इस कश्ती पर सवार थे जो अब लापता है। इमदादी कारकुन समुंदर के इलाके में तलाश करते रहे और अब आके तलाश को रोक दिया गया। जनूब मगरबी साहिल से तकरीबन 50 समुद्री मील के फासले पर यह कश्ती उल्टी। वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद जिंदा बच जाने वालों की तलाश की उम्मीदें कम होती रहीं और अब जो नहीं मिल सके तकरीबन 500 के करीब, उन्हें मुर्दा तसव्वुर कर लिया गया। यानी समुंदर अब उन्हें अपनी आगोश में ले चुका है। वो जो अपनी आंखों में कुछ ख्वाब सजाए हुए घर से निकले थे, वो हुकूमत वक्त से सवाल करते हैं कि हमारे लिए तुम अच्छा रोजगार फराहम क्यों ना कर सकी। वो बच्चे हुकूमत वक्त से सवाल करते हैं कि मेरे बाप को यहाँ से जाने पर मजबूर किसने किया। वो माएँ हुकूमत वक्त से सवाल करती हैं कि जिन बच्चों को पाला, पोसा, बड़ा किया और सोचा कि पाकिस्तान के अंदर वो अपने कारोबार की तरवीज कर पाएंगे, वो क्यों पाकिस्तान से गए। ये पाकिस्तानी सवाल करते हैं कि हम अपना टैक्स अदा करते हैं और टैक्स के रिटर्न्स में हुकूमत, रियासत, माँ क्या फराहम करती है। ये बेशुमार सवालात हैं। आप आइए
मजम्मत कीजिए, दो चार जुमले बोलिए, कमेटी तश्कील दीजिए और आपके कंधों से बार उतर जाता। लेकिन वो माँ जिसने अपनी कोख में 9 माह बच्चे को रखा और फिर सारी जिंदगी उसकी परवरिश की, उसके आने से पहले उसके कान दरवाजे की आहट पर उठ जाते थे, वो खुद उठती और दरवाजा खोलती थी, वो माँ किस कर्ब में मुब्तला होगी। वो बाप जो अपने बेटे को अपना बाजू समझने लगा था और समझता था कि मेरी जूती अब अगर इसे पूरी आना शुरू हो चुकी है तो ये कारोबार को आगे बढ़ाएगा, ये अपने बच्चों को अपने से बेहतर तालीम दिलवाएगा, वो अब समुंदर में किसी और की खुराक बन जाएंगे। कौन सवालात के जवाब देगा? इस वाक़े पर यूनान की कोस्ट गार्ड की कश्ती पर सवार अफराद की मदद ना करने पर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यूनान के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है और कहा गया कि तारकीन वतन जो हैं, आप ये देखिए कि जिस मुल्क के अंदर ये गैर कानूनी तौर पर जा रहे हैं, वहाँ के बाशिंदे उठ के कह रहे हैं कि इनको हुकूक फराहम किए जाएं, और हमारे यहाँ पर्दा किस तरीके से डाला जाएगा। गैर कानूनी तौर पर जा रहे थे, इंजाम भुगत लिया। इसी तरह के कलिमात कहे जाएंगे और वाक़े को माजी का किस्सा बना दिया जाएगा। लेकिन हम कभी नहीं सोचेंगे कि हमने हालात को किस नहज तक पहुंचाया है कि यहाँ से सरमायाकार बाहर क्यों भाग रहा है, यहाँ से पढ़ा लिखा तबका बाहर क्यों जा रहा है। यूनान में हुकाम का कहना है कि उनकी जानिब से इमदाद की पेशकश की गई थी लेकिन मुस्तरद कर दी गई। यूनान की एक टीवी रिपोर्ट है, इस वाक़े के तनाजुर में कम अज़ कम 11 गिरफ्तारियाँ की गई हैं, जिसमें ज़्यादातर मिस्री शहरी हैं। ये कश्ती लीबिया की बंदरगाह तोबरोक से इटली जा रही थी, जिस दौरान ये समुंदर में गर्क हुई। इस हवाले से सामने आने वाली तस्वीर में कश्ती की डेक्स को लोगों से भरा हुआ दिखाया गया। कालामाना जनरल अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने यह बताया है कि 100 बच्चे भी इस कश्ती पर सवार थे। हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर मनोलस मार्केस के मुताबिक जिंदा बच जाने वालों ने हमें यह बताया है कि कश्ती के निचले हिस्से में बच्चे मौजूद थे, बच्चे थे, खवातीन थीं। उन्होंने ये कहा कि 2 ज़ेरे इलाज बच जाने वालों ने उन्हें अपने अंदाजे के मुताबिक अदाद शुमार बताए हैं। एक मरीज़ ने मुझे ये बताया कि कश्ती पर लगभग 100 बच्चे थे और दूसरे मरीज़ ने कहा कि 50 के लगभग थे। इसलिए मैं सच नहीं जानता, लेकिन ये बच्चे बहुत हैं। डॉक्टर का कहना है कि उनका ख्याल है कि इस वाक़े में 600 से ज़्यादा अफराद हलाक हो सकते हैं। उनका कहना है कि कश्ती पर सवार तमाम अफराद की सही तादाद 750 थी। लापता होने वाले कुछ मिस्री बच्चों के अहल खाना ने उन्हें अपने नौजवान रिश्तेदारों की तस्वीर भेजी और उम्मीद की कि वो इनका इलाज करने के बाद शनाख्त के अमल के दौरान उन्हें पहचान लेंगे। ये एक अलमिया है, ये हमारे मुल्क का नहीं, ये सरमायादाराना निज़ाम का अलमिया। वो सरमायादाराना निज़ाम जिसने ब्लॉक्स बनाए और दुनिया को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया, और फिर शहर शहर, मुल्क मुल्क ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अगर हमारे सियासतदान ऐसे, अगर हमारे यहाँ पे रिवायात ऐसी हैं, अगर हमारे यहाँ पे मईशत को चलाने के लिए इक़दामात ऐसे हैं, तो दूसरे ममालिक में भी होंगे। वहाँ पे भी किसी जमात ने कब्ज़ा कर रखा होगा, वहाँ पे भी मसनद इक़्तिदार पे बैठने के ख्वाहिशमंद अपने मुखालिफिन को अपने साथ बिठा लेते होंगे, मुँह बंद करवा लेते होंगे और यूं ही दौरे इक़्तिदार गुजार लेते होंगे। यूनान की वजारत जहाज़ रानी के मुताबिक इस कश्ती से बारहा रब्ता किया गया, ताहम कश्ती वालों ने कहा कि वो इटली जाना चाहते हैं। 10 पाकिस्तानी नौजवान हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सफारत के अमले के सामने पूरा वाक़या बयान किया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत बजरिया हवाई जहाज़ लीबिया पहुँची। लीबिया से निकलने वाली कश्ती में गुंजाइश बमुश्किल 250 अफराद की थी, लेकिन सवार 750 मुसाफिरों को करवाया गया। कोस्ट गार्ड्स के ज़रिए डर ऐसा फैला कि 5 दिन हम समुंदर में घूमते रहे। पानी ख़त्म हुआ, खुराक का ज़ख़ीरा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, तो करीब से गुजरने वाले जहाज़ों ने हमारी मदद की। कश्ती के कप्तान की जानिब से इमदाद की फराहमी के पैगामात जो थे वो यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने सुन लिए, ट्रेस हो गए और यूनानी कोस्ट गार्ड की कश्ती को टोइंग बोट्स के ज़रिए ले जा रहे थे। यानी यहाँ पे आप ये देखिए कि कश्ती खुद नहीं उल्टी, 5 दिन समुंदर में सफ़र करती रही, उसे टो किया गया। टो करते हुए जब ले जाया गया तो जहाँ पे 250 अफराद की गुंजाइश थी तो उस पर 750 होंगे। टो करने की कोशिश करेंगे, कश्ती उलट गई। अब इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत क्या उनसे जवाबदेही मांगेगी? क्या हिसाब मांगा जाएगा? जो मर चुके उनके ख्वाब कौन पूरा करेगा? इसके जवाबात किसके पास? सोचिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।